So, hello everyone, welcome you all into my new case-based learning series. So, if you are new here, I am Dr. Hemangi Kothari, MD Pediatrics. So, today we are starting with case number 3. So, here we start. 7-year-old female child studying in 2nd standard came to our emergency department with complaint of severe headache, nausea, dizziness and impaired vision for 2 days. Periorbital swelling since morning. On further asking to mother, child has decreased urine output and dark cola color urine present since 1 day. So here severe headache, nausea, dizziness, impaired vision, periorbital swelling and dark cola color urine and decreased urine output. So which system is involved? This is renal system is involved. Child had sore throat, cold and cough before 10 days for which no medication taken by them, only home remedies was done. So this is cola color urine. Child is no any past medical hospital admission before this, and developmentally normal child, no significant family history. So developmentally normal child, no any past hospital admission, no any significant family history, suddenly came with complaint of just these features: severe headache, nausea and impaired vision, periorbital swelling and renal symptom like decreased urine output. There is oliguria and dark cola color urine, means there is like hematuria. So on vitals of the baby, temperature was normal, heart rate 104 per minute, respiratory rate 20 per minute, SpO2 99%, CRT less than 3, and on measurement of BP was so high, it is more than 95th centile, 142 by 97. RBS was normal. So renal system is involved, that we know. So what is your diagnosis? What is your provisional diagnosis? So yes, you all are thinking correctly. Your guess is correct. It is acute PSGN. So what is acute PSGN? It is acute post-streptococcal glomerulonephritis, because in our case there is history of sore throat and after 10 days there is sudden development of cola colored urine, decreased urine output, there is periorbital swelling. So we are guessing that it is acute PSGN. So we are learning about acute PSGN. It is the most common cause of glomerular cause of gross hematuria in the children. It is most common cause of nephritic syndrome in the children. It occurs more in males than females, and it occurs in 5 to 12 years of age, and peak age is 7 years. It is so rare in less than 3 years and in adults. Acute PSGN is mostly sporadic. So it occurs by group A, beta hemolytic streptococcal infection. ये इन्फेक्शन की वजह से either सोर थ्रोट होगा या फिर स्किन इन्फेक्शन होगा. स्किन इन्फेक्शन मतलब ये स्ट्रेप का इन्फेक्शन पायोडर्मा हो सकता है या फिर फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो सकता है. तो स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन होती है जो किडनी को अफेक्ट करती है. तो सोर थ्रोट वाले में M1, M4, M12 एंड M25, एंड स्किन इन्फेक्शन में M49. ये नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन मतलब अगर किसी को सोर थ्रोट हुआ है और नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन से हुआ है तो आफ्टर 1 to 3 वीक्स एक्यूट PSGN डेवलप हो सकता है. और अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन M49 से तो उसके 3 to 6 वीक्स बाद, आफ्टर 3 to 6 वीक्स somewhat delayed, acute PSGN हो सकता है. So overall risk of renal involvement in acute GN with nephritogenec strain is 15%. So not all the infection by nephritogenec strains cause nephritis. So this is streptococcal bacteria. Nephritogenec strains are responsible for the epidemics of PSGN in developing country, and low socioeconomic class, overcrowding and poor hygiene is also responsible. So here we are understanding what is the pathogenesis, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से नेफ्राइटिस कैसे हो जाता है. तो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस टिपिकली अफेक्टिंग थ्रोट और स्किन, फेरेंजाइटिस, इम्पेटिगो. उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शन हमारी बॉडी से होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन्स. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स in the bloodstream, and this immunocomplex, antigen antibody complex, deposited inside the glomerular basement membrane and leading to inflammation. And there is C3 activation, there is complement pathway activation, and there is recruitment of inflammatory cells and release of cytokines and protease. So there is damage to the glomeruli, and inflammation leads to capillary wall thickening and endothelial swelling and decreased in GFR. सो हाउ टू डायग्नोज दिस एक्यूट PSGN. तो सबसे पहले टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स मतलब टिपिकल हिस्ट्री होगा. देर इज ग्रोस हिमेचुरिया, रेड और ब्लैक कलर यूरिन एंड यूजुअली रिजॉल्व्स इन 2 weeks और इट कैन परसिस्ट फॉर 4 weeks ऑल्सो. देर इज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन. जो हमारे बच्चे को सिम्टम था दैट सीवियर हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, इम्पेयर्ड विजन, वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से हो सकता है. तो देर इज सीवियर हाइपरटेंशन कैन लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस. देर इज ओलिग्यूरिया, बट दिस ओलिग्यूरिया इज सेल्फ लिमिटेड और इट कैन प्रोग्रेस टू एन्यूरिया ऑल्सो.
एन्यूरिया लीड्स टू एजोटेमिया, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएट इंक्रीज हो जाएगा. सम डिग्री ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी होता है, मतलब हाइपरवोलेमिया होता है. और इफ वॉल्यूम रेस्ट्रिक्शन इज नॉट परफॉर्म देन पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ पल्मोनरी इडिमा. सो देर इज हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी इडिमा, इसीलिए हम एक्यूट पीएचजीएन का एवरी पेशेंट में फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करते हैं. देर इज माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें +3+4 होता है, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट मतलब +1+2 प्रोटीन यूरिया मिलता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम में पीएचजीएन में. दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो व्हाट इज एटिपिकल पीएचजीएन? एटिपिकल पीएचजीएन में क्या क्या हो सकता है, मतलब कि उसमें नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक देर इज बोथ सिम्टम. 5 to 10% केसेस में मिक्सड केस मिलता है, मतलब नेफ्राइटिक सिंड्रोम के हाइपरटेंसिव वाले फीचर्स भी मिलेंगे, नेफ्रोटिक वाले मतलब हाई ग्रेड प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है. देर इज एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, जो हमने देखा कि कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड हाइपोक्सेमिया. अगर हमने फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो देर इज चांसेस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड एंड देर इज एक्यूट पल्मोनरी इडिमा. ड्यू टू हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन, देर इज चांस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस. उसकी वजह से सीएनएस चेंजेस मिल सकता है और एमआरआई में प्रेस. देर इज पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनकेफेलोपैथी सिंड्रोम, जो हमारे पेशेंट को इम्पेयर्ड विजन था, दैट इज फीचर ऑफ प्रेस सिंड्रोम. पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनकेफेलोपैथी सिंड्रोम जो सीवियर हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस के केसेस में आपको देखने को मिलता है. इन 10% केसेस माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया अप टू 12 मंथ्स कैन बी प्रेजेंट, मतलब कि 1 साल तक माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया प्रेजेंट मिल सकता है. सो टू डायग्नोस एक्यूट पीएचजीएन, व्हाट आर द ब्लड टेस्ट विल हेल्प अस टू डायग्नोस? So C3 level is low in more than 90% patient. So this is so important. C3 decrease रहेगा, but C4 is normal. CH50 is also low, mild anemia due to mild hemolysis and significant oliguria. Elevated BUN, serum create increase मिलेगा. Urine examination में RBC cast, dysmorphic RBC. This is showing low molecular cause of hematuria. On examination of urine, there is proteinuria and pus cells also can be present. सो देर इज़ लाइक हिस्ट्री ऑफ रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, तो हमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस भी मिल सकता है, लाइक पॉजिटिव स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट, पॉजिटिव सोर थ्रोट स्वैब कल्चर, ASO लेवल दैट इज एंटी स्ट्रेप्टोकोकल O लेवल इंक्रीज इन सोर थ्रोट एसोसिएटेड पीएचजीएन. मतलब कि ASO टाइटर्स डू नॉट ऑलवेज रिलेट टू सिवियरिटी ऑफ द प्रोग्नोसिस, बट इट इज इंक्रीज इन सोर थ्रोट एसोसिएटेड पीएचजीएन. ओके, अगर पायोडर्मा एसोसिएटेड पीएचजीएन है तो एंटी-DNase B लेवल इंक्रीज्ड. Next is imaging. तो chest X-ray should be done in suspected case of pulmonary edema or hypervolemia. MRI can be done in case of acute neurological sign or symptom. जो हमारा केस है उसमें MRI कर सकते हैं, तो क्योंकि उसको impaired vision है, severe headache है, तो प्रेस का सिम्टम अगर आपको मिलता है तो उस केस में आप MRI कर सकते हो. सो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ रीनल बायोप्सी? रीनल बायोप्सी कौन से केसेस में करना है? तो अगर मतलब कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साथ साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है, नेफ्राइटिक जो पीएचजीएन है उसके साथ साथ AKI भी है, आरपीजीएन प्रोग्रेस हो गया है तो, और नॉर्मल पीएचजीएन से अगर कुछ भी डेविएट है तो, मतलब कि एब्सेंस ऑफ सीरोलॉजिकल एविडेंस ऑफ रीसेंट स्ट्रेप इन्फेक्शन, देयर इज नॉर्मल C3 लेवल. नॉर्मली क्या होता है कि सब पीएचजीएन केसेस में C3 लेवल डाउन होगा, लो होगा, लेकिन अगर नॉर्मल C3 है, एब्सेंस ऑफ रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो, और अगर डिलेड रिजोल्यूशन है एनी ऑफ दिस like persistently low C3 beyond 2 to 3 months, nephrotic range proteinuria beyond 2 weeks, oliguria azotemia beyond 2 weeks, gross hematuria beyond 4 weeks, and persistent microscopic hematuria beyond 12 to 18 months. So these are the criteria. There is delayed resolution of the symptom of PSGN, तो हम इन केसेस में हम रीनल बायोप्सी कर सकते हैं. तो रीनल बायोप्सी करेंगे, उसमें क्या दिखेगा? तो रीनल बायोप्सी किया, लाइट माइक्रोस्कोपी में ग्लोमेरुलाई आर एनलार्ज एंड ब्लडलेस. देर इज सो डिफ्यूज मेसेंजियल प्रोलिफरेशन एंड न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट एंड क्रीसेंट्स आर सीन इन वेरी सीवियर केसेस. So there is diffuse mesangial proliferation. This is hypercellular glomeruli you can see, and in severe cases there is crescent formation. As you can see here, there is crescent formation in severe cases of PSGN. Okay, if you do electron microscopy, then you can see subepithelial dense deposit. It is called hump. So you can see here there is hump formation. So it is subepithelial dense deposits. So there is humpy appearance. In immunofluorescence microscopy, there is lumpy bumpy deposits of immunoglobulin and C3 जो complement है. C3 and IG का deposit होगा immunofluorescence में, तो ये देखने को मिलेगा lumpy bumpy appearance. तो आप याद रख सकते हो PSGN में lumpy bumpy humpy appearance मिलने को देखने को मिलता है. So what is the treatment of acute PSGN? It is mainly totally supportive.
देयर इज फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज नीडेड इन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट. क्यों करना है? क्योंकि टू प्रिवेंट देयर इज फ्लूइड ओवरलोड एंड प्रिवेंट एक्यूट पल्मोनरी इडिमा. तो अगर किसी पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड है तो हम डायूरेटिक्स फ्यूरोसेमाइड 1 to 3 mg per kg स्टार्ट कर सकते हैं. इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे कि हमारे केस में हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो हाइपरटेंशन का कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सोडियम रेस्ट्रिक्शन विद एंटी हाइपरटेंसिव. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन बी यूज. डायूरेटिक यूज. एसी इनिबिटर भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एसी इनिबिटर में क्या प्रॉब्लम होता है कि जो एजोटेमिया वाले पेशेंट है उसमें हाइपरकैलेमिया का चांस रहता है, बिकॉज देयर इज साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनिबिटर इज hyperkalemia. So AC inhibitor always use with precaution. Management of LVF, if develops, there is 10 days of penicillin course to suppress or eradicate the source of infection. But penicillin course does not alter overall natural history of disease. There is no role of antibiotic prophylaxis in acute PSGN because infection तो 10 days पहले 1 to 3 weeks पहले already हो चुका है. ओके. इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन एक्यूट PSGN, अगर सीवियर ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया है तो रिफ्रैक्टरी LVF और पल्मोनरी एडिमा जो रिफ्रैक्टरी टू डायूरेटिक्स एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन है तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसइलेक्ट्रोलेमिया है तो इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस. व्हाट इज प्रोग्नोसिस ऑफ एक्यूट PSGN? सो होपफुली एंड इट इज कंप्लीट रिकवरी occurs in more than 95% of the patient. Only in 4 to 5% patient will develop RPGN, मतलब कि rapidly progressive glomerulonephritis और chronic glomerulosclerosis. What are the poor prognostic factors in acute PSGN? तो older age, raised serum creatinine, crescents on renal biopsy, as we have seen that crescents is only seen in severe cases of acute PSGN. So अगर crescent दिखता है तो वो poor prognosis है. Mixed case है जैसे कि nephritic भी है nephrotic भी है तो वो poor prognostic factor है. व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ रिकवरी? अगर एक्यूट PSGN हो गया तो वो रिकवरी कैसे होगा? सबसे पहले ईडीमा स्टार्ट टू रिजोल्व. फर्स्ट वीक में ईडीमा स्टार्ट टू रिजोल्व होता है. देन सेकेंड वीक में ग्रोस हिमेचुरिया वो रिजोल्व हो जाता है. थर्ड वीक में हाइपरटेंशन रिजोल्व हो जाता है. 4 to 6 वीक्स में NT-DNS-B वो डिसअपियर हो जाता है ब्लड में से. 6 to 8 वीक्स में सीरम C3 लेवल नॉर्मल हो जाता है. 12 मंथ में माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया एंड माइल्ड प्रोटीनूरिया भी रिजोल्व हो जाता है. तो दिस इज वेरी लाइक सीक्वेंस ऑफ रिकवरी. अगर ये नहीं होता तो हम रीनल बायोप्सी करेंगे एज वी हैव सीन बिफोर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट PSGN. थैंक यू.